Hello everyone, my name is Swati, your English educator from Magnet Brains. And today we are going to start the fourth chapter of our Honeysuckle book, class 6. And what are we talking about? Today we are going to talk about one of our national heroes, I should say heroine. A national heroine who was an astronaut, an engineer, and later the first woman to enter into the space and of Indian origin. Who was she? She was Kalpana Chawla, and I'm sure you must have heard her name a lot many times, because whenever we talk about inspiration, motivation, dedication, so this name is always there, because she was a picture of dedication. She was a synonym of persistence and motivation. आज भी जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनकी stories पढ़ते हैं, and how it ended, like the disaster that happened in February, we get goosebumps. Because वो story पढ़ते पढ़ते कहीं ना कहीं ये लगता है यार, I wish I could do something. I wish or I want to do something. और वो जो motivation आता है ना, I think that is the motivation we need while we are in our student years, so that we can achieve something big in our coming life. So उसी motivation के साथ start करते हैं हमारा ये chapter, an Indian American woman in space, Kalpana Chawla. Now this is the picture of Kalpana Chawla with a smiling face. Let's start. Before you read, a space shuttle is a spacecraft that is made for repeated space travel, unlike a rocket, for example, between Earth and a space station. So before we understand and start reading this chapter, there are certain nomenclatures, कुछ ऐसे words हैं जिनके बारे में आपको अच्छा खासा knowledge होना चाहिए, ताकि आप इस chapter को अच्छे से रीड कर पाओ, प्रॉपरली समझ पाओ. सो स्पेस शटल क्या होता है? स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो ये ऐसा नहीं होता कि एक बार गया और उसके बाद फिर वो वहां जाने के बाद वापस नहीं आ सकता. तो ऐसा एक स्पेस शटल एक स्पेस क्राफ्ट होता है जिसमें आप बार बार ट्रैवल कर सकते हो. नाउ दैट इज योर फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू नो. यूज अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो. Find out the meanings of the following words and phrases. Naturalized का मतलब क्या है? Space का मतलब क्या है? Frontiers of space का मतलब क्या है? So ये सारे words जो हैं basically आपसे इसीलिए कहा गया है because ये chapter में आपके आएंगे aboard, lift off and crew. So हम ये सारे words का मतलब अपने chapter में देखेंगे. Okay? अब है notice the spellings of these words. In this lesson, airplane, program. This is how these words are spelled in American English. How are they spelled in British English? तो जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, तो जितने भी वर्ड्स स्टार्ट ऑफ द चैप्टर में दिए हैं कि इनका मीनिंग डिक्शनरी में ढूंढिए, वो सारे मीनिंग्स वन बाय वन आई एम गोइंग टू टेल यू एज वी कम अक्रॉस दोज वर्ड्स while reading the chapter. Similarly, there is a difference between British English and American English. Spellings different होती हैं, pronunciation different होता है, तो वो बात भी हम देखेंगे. क्योंकि आपने नोटिस किया होगा अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करते हो, तो अगर लिखा होता है कलर, COLOUR, दिस इज आवर स्पेलिंग. हम इसी तरीके से कलर की स्पेलिंग लिखते हैं, लेकिन वहां पे वो उसमें एक रेड लाइन दिखा देता है एंड वो स्पेलिंग जो शो करता है वो होता है COLOR. राइट? सो दोनों वर्ड सेम हैं, दोनों स्पेलिंग्स राइट हैं, तो क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस हम समझने वाले हैं when we are going to understand the difference between American English and British English. But before we do all those things, we need to read this chapter because it's an amazing, inspiring, motivational story. So this chapter starts with a news report. Tragedy in space. US space shuttle Columbia breaks into flames. In an unprecedented space tragedy, US space shuttle Columbia carrying India-born American astronaut Kalpana Chawla and 6 others here. Now this chapter starts with a news report, a report of that black day when Columbia जो space shuttle था जिसमें कल्पना चावला और उनके साथ 6 और लोग जो थे, astronauts जो थे, वो travel कर रहे थे, उन लोगों का जो spacecraft था वो crash हो गया. It was bursted into flames.
ओके, सो ट्रेजेडी इन स्पेस यूएस शटल कोलंबिया, कोलंबिया क्या है, उसका नाम है, उस स्पेस शटल का नाम है, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, मतलब जब क्या हुआ, आपका स्पेस जो होता है, स्पेस में जो पूरी एनर्जी होती है वो बहुत डिफरेंट होती है, जो उसका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, और आपके अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत डिफरेंस होता है, जो उसके साथ पूरी जो एनर्जी अराउंड होती है। तो जब वो स्पेस से अर्थ में एंटर कर रहा था तो इट वॉज नॉट एबल टू बेयर इट एंड इट बर्स्टेड इनटू फ्लेम्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है, नेवर डन और नोन बिफोर, मतलब ऐसी ट्रेजेडी कभी हुई नहीं थी, इसलिए इसका मतलब है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब ऐसा कभी देखा ही नहीं था, ऐसा कभी हुआ नहीं था। स्पेस ट्रेजेडी, ये जो स्पेस ट्रेजेडी हुई है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया की, इसमें कितने लोग थे, इट हैड कैरिंग, मतलब उसमें कौन कौन लोग थे, इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 others broke apart in flames as it streaked over Texas towards its landing strip on Saturday, 1st of February 2003, killing all 7 on board. Broke apart का मतलब क्या है, break violently, बहुत बुरी तरीके से वो एकदम से फट गया पूरा का पूरा, at streaked over Texas. Streak मतलब जब वो टेक्सास के ऊपर फुल स्पीड से लैंड कर रहा था, ओके, जो टेक्सास इज अ प्लेस, तो वहां पे जब वो स्पेस में ऊपर से उस मतलब लैंड करने के लिए, अर्थ में एंटर करने के लिए ट्राई कर रहा था, तब उसकी लैंडिंग के टाइम पे, लैंडिंग स्ट्रिप का मतलब क्या होता है, लैंडिंग स्ट्रिप का मतलब होता है कोई एयर स्ट्रिप जहां पे आप लैंड कर रहे हो। ऑन 1st of February सारे लोग उसमें जितने भी लोग थे, दे वर ऑल डेड, ओके। The shuttle lost contact with NASA at about 9 AM. So morning 9 o'clock जो शटल था, स्पेस शटल था, उसका नासा के साथ पूरा कांटेक्ट खत्म हो गया। As it came in for landing, जैसे वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, उसका नासा के साथ पूरा जो कांटेक्ट था वो खत्म हो गया। It was flying at an altitude of over 2 lakh feet and traveling at over 20,000 kilometer. मतलब इसका ऑल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एक एलिवेशन, इस तरीके से जो होता है ना, एक एलिवेशन होता है ऑल्टीट्यूड, एंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट अबव द होराइजन। सो जैसे अगर आपका मान लो ये होराइजन है तो इसमें क्या ऑल्टीट्यूड है, सो ये एक 20,000 फीट के ऑल्टीट्यूड में था, एंड ट्रैवलिंग किस स्पीड से, 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो आ रहा था। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, और उस टाइम पे जब वो एंटर कर रहा था तो पूरा जो ग्राउंड कंट्रोल होता है उनका जो था कनेक्शन जो था शटल के साथ वो पूरा खत्म हो गया। कोलंबिया had lifted off on 16 January 2013 from the Kennedy Space Center, Florida. It had stayed in orbit for 16 days and the 7-member crew conducted 80 experiments before it began its downward journey, which ended in tragedy. अभी वो हमें क्या बता रहा है, कोलंबिया ने टेक ऑफ कब किया था। So we got to know that Columbia got, like, it was all blasted on 1st of February, right? And here it started on 16th January 2003. It took off. यहाँ पे जो lift off है, lift off का मतलब क्या होता है, it started or it took off on 16th January 2003 from the Kennedy Space Center, Florida. कहाँ से start हुआ था, फ्लोरिडा में जो space center है वहाँ से start हुआ था। It had stayed in orbit for 16 days. और 16 डेज तक वो ऑर्बिट में ही था और वो प्रॉपरली वर्क कर रहा था। उन 16 डेज में जो 7 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक कल्पना चावला भी थी, उन्होंने 80 एक्सपेरिमेंट्स किए। उन्होंने टोटल 80 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए थे स्पेस में बिफोर दे स्टार्टेड बैक फॉर भोपाल अर्थ, विच एंडेड इन ट्रेजेडी। लेकिन उन 80 सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद जब वो वापस आए तो वो कभी पहुंच नहीं पाए। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, ओके, सिंस इट्स अ स्पेस शटल, तो ये कौन सी स्पेस फ्लाइट थी, 28th
स्पेस फ्लाइट थी एंड द शटल वाज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स. सो ऐसा कुछ नहीं था कि शटल में कोई इश्यूज थे, क्योंकि शटल 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल प्रॉपरली मेड था, लेकिन 28th फ्लाइट वो अपनी पूरी नहीं कर पाया. कल्पना चावला said that she never dreamed as a child in Karnal that she would cross the frontiers of space. Now we are about to, this was a news report, now we are about to start with our story about Kalpana Chawla. So कल्पना चावला इंडियन ओरिजिन था उनका, मतलब वो हरियाणा के एक शहर करनाल से थी. She had never dreamed that she would cross the frontiers of space. उन्हें कभी नहीं लगा था कि वो स्पेस में ट्रैवल करेंगी, वो कभी भी एक एस्ट्रोनॉट बनेंगी. It was enough that her parents allowed her to attend engineering college after she graduated from Tagore School. So जो आज भी हमारे घर पे बहुत सारे जो पेरेंट्स होते हैं, दे थिंक दैट इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू गिव अ गर्ल द प्रॉपर एजुकेशन दैट शी डिजर्व्स. आज भी हमारे इधर पे बहुत सारी जगह है जहाँ गर्ल्स को वो प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द स्मॉल विलेज. सो कल्पना चावला हैड नेवर ड्रीम्ड कि उनको जो है स्पेस में एस्ट्रोनॉट बनने का मौका मिलेगा, स्पेस में ट्रैवल करने का मौका मिलेगा. उनके लिए ये बहुत था कि उनके पेरेंट्स ने उनको बेसिक इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया था, बिकॉज शी वॉज ऑलवेज अ वेरी ब्राइट स्टूडेंट. तो उनको इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया था आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल. सो उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया था, मतलब ग्रेजुएटेड मतलब जब उनका 12th तक टैगोर स्कूल से हो गया, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग करी, और उसके लिए भी शी वॉज वेरी थैंकफुल टू हर पेरेंट्स. After a Bachelor of Science degree in Aeronautical Engineering against great opposition from her father, मतलब उन्होंने क्या किया था पढ़ाई में she had a Bachelor of Science degree किसमें, Aeronautical Engineering में उन्होंने BSc किया था, और that too her father was totally against her. Her father never wanted her to do this. उनके हिसाब से ज़रूरी नहीं था वो चीज़. She went for a master's degree to the United States of America. So ना सिर्फ वहाँ पे she stopped. Once she was done, she completed her aeronautical engineering. She went to US. Why? To complete her master's degree के लिए. She later earned her PhD in aerospace engineering. एंड वहाँ उनका सफ़र ख़त्म नहीं हुआ था. जैसे ही उन्होंने मास्टर्स कर लिया, तब शी हैड द अर्ज कि नहीं, अब मुझे इसमें PhD करनी है. किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. जब वो छोटी थी कल्पना चावला, तब ना वो अपने फादर के साथ जो ये फ्लाइट स्टेशंस होते थे वहाँ जाती थी, और वहाँ पे देखती थी कि प्लेन कैसे उड़ रहे हैं. एंड दैट वाज द टाइम शी गॉट सो इंस्पायर्ड दैट शी डिसाइडेड वन डे इफ पॉसिबल आई वुड वांट टू फ्लाई अ प्लेन. Kalpana Chawla was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral. So Kalpana Chawla was the first Indian American woman, ये पहली Indian American woman थी astronaut to blast off. Blast off मतलब take off from a launching site, to take off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida, and participate in a successful mission in space. So she was the first astronaut, first Indian origin woman जिन्होंने यहाँ पे एक सक्सेसफुल मिशन, स्पेस के एक सक्सेसफुल मिशन में पार्टिसिपेट किया. Her family from India cheered along with staff at the Kennedy Space Center as they watched the Columbia lift-off. So first time जब Columbia lift-off किया था, तब उनके पूरे घर वाले, पूरा करनाल, because she belonged to Karnal, so they were so proud of her. And everybody cheered for her. They were so happy for her as it took off, as it lift off. Lift off का मतलब क्या होता है? A launch pad is an above ground facility from which a rocket powered. So no, this is a launch pad वाला thing. So lift off का मतलब क्या होता है? To take off. Kalpana was born in Karnal, Haryana, but was a naturalized US citizen, married to flight instructor John Pierre Harrison. अब कल्पना जो थी वो एक्चुअली इंडिया से थी, लेकिन लेटर शी वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन. नेचुरलाइज का मतलब क्या होता है? एडमिट टू द सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री. मतलब जब वो वहाँ पे गई, उन्होंने वहाँ की पढ़ाई करी, उन्होंने वहाँ से PhD करी, सो शी गॉट द ग्रीन कार्ड ऑफ दैट कंट्री एंड शी बिकेम अ सिटीजन ऑफ दैट कंट्री. So originally by birth she was a citizen of India, but then she also got a citizenship of
US. And she married the flight instructor John Pierre Harrison. Besides being an astronaut, she was licensed to fly single and multi-engine land airplanes, single-engine seaplanes and gliders. So वो एस्ट्रोनॉट तो थी, बट देन शी वॉज मल्टी टैलेंटेड. शी हैड द लाइसेंस. क्या क्या फ्लाई करने का लाइसेंस था? सिंगल और मल्टी इंजन एयरप्लेन्स. सिंगल इंजन एयरप्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी, मल्टी इंजन एयरप्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी, सिंगल इंजन सी प्लेन्स भी फ्लाई कर सकती थी एंड ग्लाइडर्स भी फ्लाई कर सकती थी. एंड शी वॉज डेफिनेटली समवन वी शुड बी प्राउड ऑफ. She was also a certified flight instructor. वो एक flight instructor भी थी. After qualifying as a pilot, कल्पना began to consider another challenge. अब वो pilot बन गई, बहुत अमेजिंग फ्लाई करने लग गई, अलग अलग तरीके के प्लेन्स फ्लाई करने लग गई. अब उनको लगा यार अब क्या, व्हाट नेक्स्ट. तब उन्होंने एक और चैलेंज एक्सेप्ट किया, अप्लाइंग टू नासा स्पेस शटल प्रोग्राम. तब उन्होंने नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम जो है उसके लिए अप्लाई किया. शी वॉज फर्स्ट hired as a research scientist at NASA. इनिशियली उनको क्या जॉब ऑफर हुआ? उनको एक रिसर्च साइंटिस्ट बनाया गया नासा में. In 1994, she was selected by NASA for training as an astronaut. And 1994 में उनको नासा ने सिलेक्ट किया to be trained as an astronaut. Astronaut क्या होता है? Astronaut means a person who is trained to travel in spacecraft. एस्ट्रोनॉट क्योंकि आपको अगर आप स्पेस में ट्रैवल कर रहे हो तो इट इज़ नॉट एट ऑल ईजी. ऐसा नहीं है रॉकेट में बैठे और निकल लिए. इट इज़ वेरी टफ. आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंड्योरेंस चाहिए, बहुत स्टेमिना चाहिए. ऑफकोर्स सी बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत अलग हो जाता है, तो योर बॉडी शुड बी एबल टू विथस्टैंड एवरीथिंग. आपको फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट होना पड़ता है एंड ऑल दोज थिंग्स. सो she was selected after a very terrific training. When asked what it was like being a woman in her field, she replied. अब यूजुअली आदमी लोग जो होते हैं, लाइक जो मेल्स होते हैं, उनसे कभी ये क्वेश्चन नहीं किया जाता कि आप एक मेल हैं और आपको चूज़ कर लिया गया है, आपको कैसा लग रहा है. लेकिन एक वुमेन से हमेशा पूछा जाता है, एक वुमेन से हमेशा पूछा जाता है कि आप पहली वुमन हो और आपने ये कर दिखाया, आपको कैसा फील हो रहा है. तब कल्पना चावला का जवाब क्या था? आई रियली नेवर एवर थॉट while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman or a person from a small city or a different country. She said थी मैं जब अपनी पढ़ाई कर रही थी, जब मैं इस चीज़ के लिए अपेयर कर रही थी या मैं जब ट्रेनिंग कर रही थी, मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं वुमेन हूँ या मैं एक बहुत छोटी सी कंट्री से, मतलब छोटे से गाँव से हूँ या मैं एक अलग कंट्री से हूँ. मैंने ये सब कभी ध्यान ही नहीं दिया बिकॉज दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. I pretty much had my dreams like anyone else and I followed them. मेरे भी सपने थे जैसे बाकी लोगों के होते हैं और मैंने अपने सपनों को फॉलो किया. And people who were around me fortunately always encouraged me and said, और जितने लोग मेरे आसपास थे उन्होंने हमेशा मुझको सपोर्ट किया, मुझे एनकरेज करा और क्या कहा? If that's what you want to do, carry on. तुम्हें ये करना है, करो. और ये बहुत मुश्किल होता है. आप कभी भी आगे जब बढ़ते हो तब आपके आसपास वाले होते हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं, ये इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है आपकी सक्सेस पे. क्योंकि क्या होता है, अगर आपको कोई बोले नहीं तुम तो नहीं कर पाओगी, अरे ज़रूरत क्या है करने की, अरे दिमाग ख़राब हो गया, ये करने की क्या ज़रूरत है, तब वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरे टाइम आप उन्हें पुल कर रहे हो नीचे की तरफ. बट जब आप कहते हो कि तुम्हारा मन है तो तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सो दैट इज़ लाइक दैट रॉकेट के जो नीचे आप एक एनर्जी प्रोवाइड करते हो कि वो एकदम फिर आसमान छू जाए. So that was it. So that is how she said that I got my family's encouragement, I got the support and that's how I started doing it. I never realized कि मैं लड़की हूँ या मैं कोई दूसरी country से हूँ. Kalpana's first space mission in the space shuttle Columbia was 15 days, 16 hours and 34 minutes long. अब इनका जो first space mission था जो कोलंबिया में था वो 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स का था. मतलब 15 डेज 16 आवर्स एंड 34 मिनट्स के लिए वो स्पेस में थी. ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स. सो ये जैसे अगर अर्थ है तो इसके ऑर्बिट में 252 चक्कर लगाए उन्होंने अर्थ के, ट्रैवलिंग
10.45 मिलियन किलोमीटर्स, ओ माय गॉड, 10.45 मिलियन किलोमीटर्स ट्रैवल किया उन्होंने 15 डेज 16 आवर्स और 34 मिनट्स में। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट। अब वो जो पूरे जो 7 लोग थे उसमें से एक तो इंडियन ओरिजिन के थे, एक यूक्रेनियन थे और एक जापानीज भी थे। द क्रू परफॉर्म्ड experiments such as pollinating plants to observe food growth in space and tests for making stronger metals and faster computer chips. अब वो जो स्पेस में गए थे तो टहलने तो गए नहीं थे कि चलो वेकेशन मना के आते हैं। They went there to study space. They went there to conduct a lot of experiments to understand कि स्पेस में अगर वो पॉलिनेशन करते हैं मतलब क्या पेड़ उग पाएंगे। पॉलिनेशन क्या होता है, जब आप पोलन ग्रेन्स जो होते हैं किसी भी प्लांट में, उसके जो फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जब वो आप उनको वापस ग्रो करने के लिए यूज़ करते हो तो क्या उससे नए प्लांट्स ग्रो हो रहे हैं, क्या स्पेस में आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं कि आप प्लांट्स ग्रो कर सकते हो। सो दे ट्राइड एक्सपेरिमेंटिंग पॉलिनेटिंग प्लांट्स कि उनको देखना था कि क्या स्पेस में फूड ग्रोथ हो सकती है। सेकेंड, दे ऑल्सो अंडरस्टूड कि क्या आप जो स्ट्रॉन्गर मेटल्स हैं वो स्पेस में बना सकते हो, कंप्यूटर चिप्स जो हैं वो स्पेस में ज़्यादा फास्ट बना सकते हो या नहीं कर सकते हो। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स करें, ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। $56 मिलियन खर्च करे थे उन्होंने ये इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स करने में। On the Saturday night when the news about the Columbia disaster broke, I'm talking about 1st of February. So जब 1st of February को जब फाइनली उनको वापस आना था तो everything was getting covered live on national television. It was a big thing, right? लेकिन जब ये disaster की न्यूज़ बाहर आई, there was shock and disbelief. There was shock everywhere. Everyone was shocked and there was a disbelief. Disbelief means when you are not able to believe कि ऐसा हुआ है कुछ. The town of Karnal spent a sleepless night as thousands of households stayed glued to their television sets in the hope that Kalpana and the crew had somehow survived. उनका जो पूरा जो करनाल जो पूरी सिटी थी वो रात भर सो नहीं पाई। वो रात भर वो लोग सिर्फ एक चीज़ प्रे कर रहे थे कि किसी तरीके से ये न्यूज़ आ जाए कि ठीक है स्पेस शटल जो है वो ब्लास्ट हो गया एंड ऑल, लेकिन क्रू जो थे वो लोग मे बी पैराशूट्स की हेल्प से या किसी भी तरीके से वो बच गए, वो निकल गए एंड दे वर ऑल प्रेइंग कि यार बस ये लोग वापस आ जाएं। बट अलास, शी वॉज अ हीरोइन. It takes enormous ability to become an astronaut. She was definitely a heroine क्योंकि astronaut बनना is not a piece of cake. It is enormous difficult मतलब enormously difficult मतलब बहुत ही ज़्यादा difficult होता है. You need to know a lot about everything. आपको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, right from biology to astrophysics to aeronautical engineering. आपको बायो का भी पूरा information होना चाहिए. Astrophysics क्या होता है? Astrophysics is a branch of space science that applies the laws of physics and chemistry to explain the birth, life and death of stars, planets, galaxies, nebulae and other objects in the universe. मतलब जो स्पेस की जो पूरी साइंस होती है कि कोई जो स्टार है, कोई प्लैनेट है, गैलेक्सीज हैं, ये कैसे बर्थ होता है इनका, कैसे ये डेड होती हैं, सारी पूरा इसको बोलते हैं हम एस्ट्रोफिजिक्स. सो इफ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट यू नीड टू हैव डीप नॉलेज ऑफ बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. और आज की डेट में जो हम एकदम super specialized लाइफ जी रहे हैं, सुपर टेक्नोलॉजी में जी रहे हैं, उसमें इफ़ यू वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट तो तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन ऐसा नहीं कि एक बुक पढ़ लिया और 2 बुक पढ़ लिया. यू शुड बी अ चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया. हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग. ऑ इंस्पायरिंग का मतलब क्या होता है? कॉजिंग और वर्दी ऑफ एडमायरेशन और रिस्पेक्ट. मतलब आपको जब आप उनकी स्टोरी पढ़ते हो, कल्पना चावला के बारे में पढ़ते हो, आपके अंदर से बहुत सारी रिस्पेक्ट आती है. For millions of young Indians, the story of Kalpana Chawla, a girl from a small town who touched the skies, had become an inspiration. आज भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो
एक बेसिक एजुकेशन के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को लगता है कि वो बेसिक एजुकेशन देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिन्होंने कल्पना चावला को अपना रोल मॉडल माना एंड दे डिसाइडेड दैट नो दे हैव टू डू समथिंग. इट्स ओके इफ दे आर from a small town, it's okay if they do not have enough resources, लेकिन all you need is to be persistent. आप अगर लगे हुए हो कि नहीं ये तो मुझे करना ही है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो literally आपको कोई नहीं रोक सकता. So Kalpana Chawla is a hero and she is a heroine, I should say. She is a heroine for everyone out there who believes that they can do something. In a message that she sent from aboard the space shuttle Columbia to students of a college in Chandigarh, Kalpana said, कल्पना जब ट्रैवल करी थी स्पेस शटल में थी तो वहाँ से अपने जो फेलो स्टूडेंट्स थे जो जहाँ जिस यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास आउट किया था, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वहाँ से उन्होंने अपने कॉलेज के जो उनके जो मतलब जूनियर्स थे उनके लिए एक मैसेज भेजा था. The path from dreams to success doesn't exist. मतलब अगर आप सपने देखते हो तो सपनों से लेके हकीकत तक में एक पाथ है. The path exists from your dreams to success. May you have the vision to find it. आपके पास वो साइट होना चाहिए, वो दृष्टिकोण होना चाहिए जिससे आप उसको पा सको. The courage to get onto it. मतलब पहले तो उसको ढूंढो कि तुम क्या चाहते हो and then have the courage to get it. Wishing you a great journey. There will surely be many who start off this journey to fulfill their dreams. और उन्होंने कहा wishing you a very all the best for your journey. और इस तरीके से उन्होंने एक अपनी छोटी सी लाइन से 2-3 लाइन से उन्होंने बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर दिया. There will surely be many to start off on this journey to fulfill their dreams. और अब ये एक impossible सी चीज़ नहीं है that you can be an astronaut and you can go to space, because she has done that and we know that this is possible. So उन्होंने ये ड्रीम बहुत सारे लोगों को दे दिया जो कि एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको स्पेस के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी होती है. So guys, yes, if you want to be there, you can do it. The only thing which is required is determination, persistence, and the courage that yes, I can do it. So on this note, we are done with our chapter reading and I'm sure that you guys got motivated and you have the feeling that kuch karke dikhana hai. This video we are going to continue the chapter, an inspiring, motivational and an amazing story about our national heroine Kalpana Chawla. So the name of the chapter is An Indian American Woman in Space, Kalpana Chawla. In the last video, we had read all about it, right? About her education, about how did she thrive to become an astronaut, about the space shuttle, about Columbia, and about the dark date 1st of February. So now that we have already read the chapter and I'm sure you all have done it properly, अगर नहीं समझा है, अगर वीडियो ढंग से नहीं देखा है तो बेटा वापस जाओ, पढ़ो और फिर इस वीडियो में आओ, so that we can start doing the question answers. क्योंकि कितना पढ़ा है, कितने अच्छे से समझा है, that we will get to know only when we will see our question answers. Okay, so let's begin. Now the first question is, where was Kalpana Chawla born and why is she called an Indian American? Where was she born? She was born in Karnal, Haryana. And why is she known as Indian American? Because her origin was Indian, but later she also got since she was living in America, so उनको वहाँ की भी nationality मिल गई थी. Okay, so let's see the answer. Kalpana Chawla was born in Karnal, Haryana. That's your first line. She got married to an American citizen and thus became a naturalized American. So she is called an Indian American. Guys, please remember that this particular word, naturalized, this word you have to remember, okay? Because naturalized का मतलब क्या होता है that by birth you do not belong to that particular nation, but later when you start living there, when you get your education from there, when you marry the person who already belongs from that particular nation, then you get a nationality of that particular country, okay?
Next question is when and why did she go to the US? Who did she marry? तो कब गई थी, क्यों गई थी और उन्होंने किससे शादी की? तो कब गई थी वो? She went to the US for higher studies in aeronautical engineering. कब गई थी वो? अपने ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद जो है वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के उसमें वहाँ पे मतलब वो यूएस गई थी, हायर स्टडीज के लिए गई थी, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के लिए गई थी, एंड देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियर हैरिसन. सो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है. सो व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो देयर? शी वेंट देयर टू परस्यू हायर स्टडीज, जो हायर स्टडीज के लिए गई थी, और किसमें? हायर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग. एंड देयर whom did she marry? She married a flight instructor. And what was the name of this flight instructor? John Pierre Harrison. Okay, so I hope ये वाला answer clear है. Let's move ahead. How did she become an astronaut? What gave her the idea that she could be an astronaut? Now, how did she become an astronaut? वो astronaut कैसे बनी और उनको ये idea किससे मिला, कैसे मिला कि वो एक astronaut बन सकती हैं? She applied for NASA's space shuttle program and got hired as a research scientist at NASA. Okay, तो उन्होंने क्या किया था? How did she become an astronaut? तो क्या हुआ जब उन्होंने पहली बार नासा के स्पेस प्रोग्राम में अपेयर करने के बारे में सोचा, तब when she started with NASA, her journey with NASA started as a research scientist, not as an astronaut. Okay, so she applied for NASA space shuttle program. उन्होंने इस चीज के लिए अप्लाई किया and got hired. Hired मतलब उन्हें रखा गया, मतलब वो कैसे किस पोस्ट पे हायर की गई? As a research scientist at NASA. And she was then selected for training as an astronaut in 1994. 94 में then she was selected to be trained as an astronaut. ठीक है, तो initially she was working with NASA, she was hired as a research scientist, but later in 1994 she was selected because she was a brilliant scientist, I should say. So she was selected to be trained for an astronaut program. And remember this thing, वो तभी भी select की गई थी as a training, मतलब for the training thing. हो सकता है training में वो नहीं कर पाती, but then she did it. What abilities must an astronaut have according to the journalist? So जो जर्नलिस्ट है जिसने वो पूरा न्यूज़ रिपोर्ट लिखा था, जिसने कल्पना चावला के बारे में हमको बहुत सारी बातें बताई थी इस चैप्टर में, उन्होंने क्या लिखा था? That if you want to be an astronaut, what all things you should know? So you should have a good knowledge of biology, of astrophysics and aeronautical engineering. So आपको एक चलता फिरता encyclopedia होना चाहिए. So this answer, how are we going to write it? According to the journalist, one needs to know a lot about everything. One needs to know a lot about everything. Biology, astrophysics, aeronautical engineering to be an astronaut. तो ये तीन subjects के नाम याद रखना. Bio, astrophysics, not biology. Biology, astrophysics and aeronautical engineering, क्योंकि इसी में तो उन्होंने अपना पूरी पढ़ाई करी थी. Now आगे बढ़ते हैं हम. Describe कल्पना चावला's first mission in space. अब इनका जो फर्स्ट मिशन था स्पेस में, हमें उसके बारे में लिखना है. तो अब हम इसमें पूरा पढ़ेंगे. कल्पना चावला's first mission in space lasted 15 days, 16 hours and 34 minutes. ये हमने चैप्टर में पढ़ा था, काफी बार बोला था, अब तक तो याद हो गया होगा. 15 days, 16 hours and 34 minutes. She went around Earth for 252 times. अर्थ के कितनी बार चक्कर लगाया उन्होंने? 252 टाइम्स. और कितने किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया था उन्होंने? 10.75 किलोमीटर्स ट्रैवल कर लिया था. और उस स्पेस शटल में कितने लोग थे? उस स्पेस शटल में बहुत सारे लोग थे, जिसमें से एक यूक्रेनियन और एक जापानीज भी थे. ठीक है, एस्ट्रोनॉट भी थे वहां पे. एंड ये जो फर्स्ट मिशन था, इसमें उन्होंने काफी सारे, अब अगर मान लो इफ इन केस ये क्वेश्चन ज्यादा मार्क्स के लिए आता है, सो प्लीज ऑल्सो राइट दैट उन्होंने उसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. राइट, जैसे पॉलिनेशन के लिए एक्सपेरिमेंट्स किया था, मेटलर्जी के लिए एक्सपेरिमेंट्स किए थे, मतलब कि मेटल्स जो है, हार्ड मेटल्स को कैसे डेवलप करें, कंप्यूटर के जो चिप्स होती है उनको कैसे ज़्यादा आप अच्छे से और फास्टर उनका मोड कर सकते हो.
ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे उन्होंने एंड देन दैट वाज देयर फर्स्ट मिशन. ओके, सो हियर इट इज डिस्क्राइब कल्पना चावला's फर्स्ट मिशन इन स्पेस. तो हम पहले बात करेंगे कि ये कितने दिन के लिए था. तो इट वाज फॉर 15 days 16 hours and 34 minutes. फिर हम बात करेंगे कि इसमें अर्थ के कितने चक्कर लगाए. 252 टाइम्स चक्कर लगाए. कितने किलोमीटर्स ट्रैवल हुआ. 10.75 किलोमीटर्स ट्रैवल हुआ. कौन कौन थे उसमें. एक जापानीज और एक यूक्रेनियन भी थे, इंक्लूडिंग कल्पना चावला. टोटल 7 लोग थे. ओके, आर वी क्लियर विद दिस. चलो नेक्स्ट आंसर देख लेते हैं. What does Kalpana Chawla say about pursuing a dream? Do you agree with her that success is possible? कल्पना चावला ने एक मैसेज भेजा था अपने जूनियर्स के लिए जब वो स्पेस शटल में थी. तब वहां से उन्होंने एक मैसेज भेजा था. एक अपने सक्सेस और अपने ड्रीम के बारे में उन्होंने एक बात की थी कि जो ड्रीम और सक्सेस का एक पाथ होता है. द ओनली थिंग इज दैट बस यू हैव टू गो ऑन विद इट. डट के रहो, डिटरमाइंड रहो, मेक श्योर दैट यू आर परसिस्टेंट एंड यू डू नॉट गिव अप. राइट, सो इस आंसर को भी हम देख लेते हैं. कल्पना सेज दैट द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट. मतलब अगर ये आपके ड्रीम्स हैं और ये आपको सक्सेस है तो हो सकता है इस वक्त आपको पाथ ना दिखे कि कैसे होगा, लेकिन हम अपनी ड्रीम से सक्सेस का एक पाथ होता है. भले वो दिखे या ना दिखे लेकिन पाथ जरूर होता है. अगर आपके एफर्ट्स सही हैं और अगर आप डिटरमाइंड हो तो वो पाथ अपने आप आगे बढ़ता है. What do you need? You have the vision to find it. May you have the vision to find it. बस उस चीज के लिए विजन चाहिए, वो साइट चाहिए कि हाँ अगर मैंने ये किया तो ये हो जाएगा, अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा और फिर मैं अपने सक्सेस तक जा सकता हूँ. द करेज टू गेट ऑन टू इट. ये जो पाथ होता है ना ये कभी आसान नहीं होता, क्योंकि सक्सेस आसान नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. एंड आई रिमेम्बर वो लक्ष्य मूवी था, उसका एक डायलॉग था कि एक घास काटने वाला बनो लेकिन अच्छे घास काटने वाले बनोगे तो कुछ मतलब है. आप कोई भी फील्ड में चले जाओ, एजुकेशन की फील्ड में चले जाओ, टेक्नोलॉजी की फील्ड में चले जाओ, बहुत सारे लोग हैं जो एवरेज काम कर रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें कोई जानता है? उन्हें कोई नहीं जानता. सिर्फ जो बेस्ट होते हैं उनको लोग जानते हैं, उनकी ही अहमियत होती है. तो कोई भी काम करो लेकिन इतना अमेजिंग करो कि हर कोई तुमको सल्यूट करे. So let's see this answer. Kalpana says that the path from dreams to success does exist. May you have the vision to find it. Please listen to this. May you have the vision to find it, the courage to get on to it. Wishing you a great journey. So this is what she said. Okay? Yes, I do agree with her. मैं भी उसके साथ अग्री करता हूँ या करती हूँ. That with vision and courage, विजन और करेज के साथ सक्सेस पॉसिबल है. विजन मतलब आपके पास साइट होना चाहिए उस पाथ को देखने के लिए, और करेज होना चाहिए उस पर चलने के लिए. तो सक्सेस तो फिर आपके कदम ही चूम सकती है और क्या कर सकती है. लेट्स गो ऑन. Now it's time to work with the text. Read the newspaper report to find the following facts about the Columbia's ill-fated voyage. Now आपको जो पूरी न्यूज़पेपर रिपोर्ट दी हुई है आपके बुक में, आपके चैप्टर में, उसको एक बार you have to reread. And then the Columbia's ill-fated voyage. Columbia is the name of the space shuttle. Ill-fated मतलब जिसकी किस्मत खराब थी. Voyage मतलब journey. Date and place of liftoff. Number of astronauts on board. Number of days it stayed in space, number of experiments done by scientists, date of return journey, and the height at which it lost contact. All these answers are mentioned in the news report. Let's quickly see this. So date और place क्या है? 16 January 2003. Then number of astronauts on board 7. Number of days it stayed in space 15 days 16 hours and 34 minutes. नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स 80 एक्सपेरिमेंट्स. रिटर्न जर्नी कब की थी इनकी? 1 Feb 2003 की. और कौन से ऑल्टीट्यूड के साथ उसका कांटेक्ट छूटा? 22 लाख फीट. यप, चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ मैच अप द फॉलोइंग. इसमें आपके पास जितने भी वर्ड्स यूज किए हैं, जो कि काफी जो नॉमेनक्लेचर जो होता है
एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले जो यूज करते हैं, उन वर्ड्स को हमको उनके मीनिंग के साथ मैच करना है। जैसे कि अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, स्पेस मिशन, सुपर स्पेशलाइजेशन, encyclopedic knowledge, awe-inspiring and in this age limited. So ये सारे को हमको उनके साथ मैच करना है, उनके करेक्ट मीनिंग के साथ मैच करना है। तो मैं डायरेक्टली आंसर्स में जाती हूँ, अदरवाइज स्लाइड्स को मूव करना पड़ेगा बहुत ज्यादा। प्लीज आपकी बुक्स को अपने सामने रखो और उसके बाद उस चीज की मीनिंग के साथ उसको मैच कर दो। अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, हमने अनप्रेसिडेंटेड का मतलब पढ़ा था, उसका मतलब होता है जो पहले कभी हुआ नहीं हो, जो आप बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर रहे हो, जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। स्पेस ट्रेजेडी, स्पेस ट्रेजेडी मतलब स्पेस से रिलेटेड कोई भी डिजास्टर। A sad accident of a kind that has never happened before in space. This is the meaning. A sad accident. ट्रेजेडी मतलब अ सैड एक्सीडेंट ऑफ अ काइंड क्योंकि ये अनप्रेसिडेंटेड है, दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इन स्पेस। ऑफ अ काइंड दैट हैज नेवर हैपेंड बिफोर इज अनप्रेसिडेंटेड और कहां पे है, स्पेस में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे फर्स्ट वर्ड फ्रेज का आंसर। सेकेंड वन इज सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। अगर मैं सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हूं मतलब मेरे पास एक सर्टिफिकेशन है दैट शी नोज हाउ टू फ्लाई। अगर वो सर्टिफिकेशन नहीं है तो कोई मुझ पे भरोसा ही नहीं कर पाएगा, और ये सर्टिफिकेशन आपको तब मिलता है जब आप प्रॉपरली ट्रेन्ड होते हो। अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स। और ये सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर किसके बारे में बात हो रही है, ये उनके हस्बैंड के बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि वो भी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर थे। सो एक पर्सन जिसके पास करेक्ट क्वालिफिकेशन है लोगों को सिखाने के लिए, बिकॉज यहाँ पे इंस्ट्रक्टर मतलब वन हु टीचेस। सो अ पर्सन विद द करेक्ट क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन्स, लोगों को प्लेन उड़ाना सिखाने के लिए जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन होती है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट इंस्ट्रक्टर सर्टिफाइड। उप्स, नेक्स्ट वन, स्पेस मिशन। स्पेस मिशन क्या है, a set of jobs to be done in space by a group. स्पेस मिशन क्या होता है, मेरे पास मिशन है मतलब मेरे पास कुछ काम है, कोई गोल है मेरा जो मुझे अचीव करना है। तो स्पेस मिशन का मतलब क्या हुआ, एक सेट ऑफ जॉब्स होते हैं कि अगर मैं उस स्पेस मिशन में जा रहा हूं, जैसे कि वो मार्स वाली मूवी देखी होगी मिशन मंगल, उसमें उनका क्या होता है, उनका मिशन क्या होता है, दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड मार्स के पिक्चर्स चाहिए, मार्स की जो अर्थ मतलब मार्स की अर्थ नहीं सॉरी मार्स का जो ग्राउंड है, जो वहाँ की उनके वहाँ के जो मिट्टी है, वहाँ का जो पत्थर है, उन सबको एग्जामिन करना, ये सब उनका गोल था, ये उनका मिशन था, राइट। सिमिलरली स्पेस मिशन यहाँ पे होता है एक सेट ऑफ जॉब्स जो भी आपको स्पेस में करने हैं बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, दैट्स इट। सुपर स्पेशलाइजेशन, सुपर स्पेशलाइजेशन मतलब ग्रेट एक्सपर्टीज इन अ फील्ड और अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ग्रेट एक्सपर्टीज, सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसको उस बारे में पूरा खतरनाक नॉलेज है, मतलब A to Z उसको उसके बारे में सब पता है। सब तो इज इम्पॉसिबल, हमेशा कुछ ना कुछ नया हम सीखते रहते हैं, लेकिन सुपर स्पेशलाइजेशन का मतलब है जैसे कि मैंने उसमें इंग्लिश मान लो तो मैंने उसमें पहले BA कर लिया, उसके बाद मैंने MA कर लिया, उसके बाद मैंने उसमें PhD भी कर ली, उसके बाद मैंने डबल PhD कर लिया और सुपर स्पेशलाइज्ड हो गई। मतलब इतनी हूँ नहीं, लेकिन दैट इज सुपर स्पेशलाइजेशन। Encyclopedic knowledge, having knowledge of a wide variety of subjects. Encyclopedic knowledge का मतलब having knowledge of a wide variety of subjects। अगर मैं encyclopedia हूँ मतलब क्या कि encyclopedia क्या होता है, इट्स अ बुक जिसमें हर सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ लिखा होता है, राइट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। सो वैसे encyclopedic knowledge का मतलब जिसमें काफी वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो। ऑन-इंस्पायरिंग मतलब जिसमें आपको मन से आप अडोर करते हो, रिस्पेक्ट करते हो, समथिंग दैट कॉजेस फीलिंग्स ऑफ रिस्पेक्ट एंड वंडर। लास्ट वन इज इन दिस एज मतलब नाउअडेज, इन दीज टाइम्स, इन दिस एज। तो अगर कभी भी आप बोलो इन दिस एज वी आर लाइक टोटली लाइक इनटू टेक्नोलॉजी, वी आर टोटली इनटू फोन्स, इन दिस एज का मतलब करंट टाइम्स में, मॉडर्न टाइम्स में, नाउ। कूल, सो वी आर डन विद दिस आंसर। Let's move on and let's start our language part.
use these phrases in sentences of your own after finding out their meanings. तो पहले ये जो phrases दिए हैं इनके मतलब निकालने हैं, मतलब निकालने के बाद उनके sentences form करने हैं. Broke apart, okay? Then you have streaked over, then spread across, lifted off, blast off, went on, cheered along, on board and carry on. ये सारे वर्ड्स के मतलब हमने चैप्टर रीडिंग करते टाइम डिस्कस किए थे. ब्रोक अपार्ट मतलब टूट जाना, अलग हो जाना, और स्ट्रीक्ड ओवर, स्प्रेड अक्रॉस, पूरा फैल जाना, लिफ्टेड ऑफ, ब्लास्ट ऑफ, भड़ाम, वेंट ऑन, कंटिन्यू, चीयर्ड, हैप्पीली आप किसी को चीयर्ड अलोंग मतलब सबको सब लोग साथ में खुश हो रहे हो, ऑन बोर्ड मतलब कितने लोग उसमें थे, एंड कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू. सो इन सारे जो फ्रेजेस होते हैं इनके हम एक बार मतलब प्रॉपरली देख लेते हैं और उसके बाद हम इसके सेंटेंसेस भी देख लेंगे. ब्रोक अपार्ट, द फायर ब्रोक द हाउस अपार्ट. ब्रोक अपार्ट मतलब चीज को तोड़ देना, चीज को खत्म कर देना. तो जैसे फायर जो थी उसने आग लग गई तो पूरा जो घर है वो टूट गया, वो पूरा घर दो हिस्सों में टूट गया. ब्रोक अपार्ट, अपार्ट का मतलब अलग अलग कर देना. तो इसका सेंटेंस कैसे बना रहे हैं हम? द फायर ब्रोक द हाउस अपार्ट. वो जो फायर थी उसके कारण जो हाउस था वो जल गया और एकदम खत्म हो गया. स्ट्रीक्ड ओवर, स्ट्रीक्ड ओवर मतलब क्या होता है? निकल लेना. ओके, स्ट्रीक्ड ओवर मतलब एकदम लॉन्च कर लेना. द जेट प्लेन स्ट्रीक्ड ओवर द वैली दिस मॉर्निंग. ओके, नेक्स्ट वन इज स्प्रेड अक्रॉस, मतलब फैल जाना. स्प्रेड अक्रॉस मतलब हर जगह फैल जाना. द डिसीज इज स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. द डिसीज लाइक लेट्स से कोरोना, सो कोरोना स्प्रेड अक्रॉस द एंटायर वर्ल्ड. नेक्स्ट वन इज लिफ्टेड ऑफ. लिफ्ट ऑफ मतलब उसका मतलब भी होता है ऊपर की तरफ जाना. द हेलीकॉप्टर मेड अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन इट लिफ्टेड ऑफ फ्रॉम द हेलीपैड. जब हेलीपैड मतलब जो जमीन का जिस पार्ट पे आपका हेलीकॉप्टर रखा हुआ है, आपका हेलीकॉप्टर जो है जहां पे स्टिल है, वहां से जब वो ऊपर जा रहा था तब उसने बहुत ज्यादा नॉइस किया जब वो लिफ्ट ऑफ कर रहा था. सो द हेलीकॉप्टर मेड अ लॉट ऑफ नॉइस व्हेन इट लिफ्टेड ऑफ द ग्राउंड, ऑफ द हेलीपैड. कोई भी चीज ऑफ का मतलब जैसे ये बॉक्स है, सो द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स. मतलब अगर मान लो ये जो कैट है वो इसके ऊपर है तो द कैट जम्प्ड ऑफ द बॉक्स का मतलब किसी चीज के ऊपर वो बैठी और वहां से जंप किया, वहां से उसने छलांग मार दी. ब्लास्ट ऑफ, ब्लास्ट ऑफ मतलब भड़ाम से फट गया. ओके, सो द एयरप्लेन ब्लास्टेड ऑफ एट मिडनाइट. मिडनाइट में एयरप्लेन जो था वो ब्लास्ट कर दिया. वेंट ऑन मतलब द मीटिंग वेंट ऑन द होल इवनिंग, चलती गई, कंटिन्यू हो ही रही थी. जैसे कि मान लो तुमने कुछ तोड़ दिया तो मम्मा जब डांटती है तो इट वेंट ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मतलब चलता ही रहा. हुआ है कभी ऐसा सुबह डांट पढ़ना चालू हुई और पढ़ते ही जा रही सर बस भी करो, उसको बोलते हैं वेंट ऑन. फिर है चीयर्ड अलोंग. चीयर्ड अलोंग जैसे कि करनाल में जितने भी लोग थे दे वर चीयरिंग अलोंग फॉर कल्पना. सो द क्रिकेटर्स वर चीयर्ड अलोंग बाय द ऑडियंस. सो यहाँ पे क्या है, जो क्रिकेटर्स जितने भी थे वो ऑडियंस जो थे मतलब दे वर चीयर्ड अलोंग, मतलब पूरे ऑडियंस जो थे वो चीयर कर रहे थे उनके लिए. ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड मतलब देयर वर 600 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड. जैसे कि ऑन बोर्ड मतलब सपोज एक प्लेन जा रहा है कहीं पे. ओके, सो उस प्लेन में कितने लोग हैं? मान लो 600 पैसेंजर्स हैं, तो हम बोलेंगे 600 पैसेंजर्स आर ऑन बोर्ड. Okay, suppose another example, there is a meeting, okay, and for around 10 people were called for that meeting. लेकिन उसमें से सिर्फ 8 लोग आए, तो how many people were on board for that meeting? Only 8 people were on board for that meeting. The last one is carry on, continue. She was convinced to carry on her career in singing. मतलब उसने सिंगिंग में अपना करियर कंटिन्यू किया. ओके, जैसे कि द टीचर कैरीड ऑन विद द टीचर सेड दैट वी विल कैरी ऑन विद द लेक्चर इवन आफ्टर द रिसेस बेल. कभी कभी होता है ना, लंच चालू हो जाता है, मैम बोलती नहीं बस 5 मिनट का बचा हुआ है, तो शी कैरीड ऑन, तो उसको बोलते हैं कंटिन्यू करना. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. शैल वी मूव अहेड.
we add un to make opposites. Now here we are talking about antonyms or opposite words. Opposite words में जैसे अगर है certain, certain का opposite क्या हो जाता है? Uncertain. जैसे कि happy, happy का opposite unhappy. जैसे कि lucky, lucky का opposite unlucky. तो ये जो अन वर्ड है इसको यूज करके हम यूजुअली चीजों का वर्ड्स के एंटोनिम्स बना देते हैं और अपोजिट वर्ड्स बना देते हैं. सो अब इन सारे वर्ड्स में हमको अन ऐड करना है और उनका ऑपोजिट बनाना है. जैसे कि आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, अटेंडेड, अनअटेंडेड, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, एजुकेटेड, uneducated, interesting, uninteresting, qualified, unqualified, trained, untrained, and answerable and unanswerable. Very simple. Okay, so these are our answers. We are done with this much. Let's move ahead. In her message to students of her college, Kalpana Chawla said, "May you have the vision to find the path from dreams to success. Wishing you a great journey from pairs. Use may you and I wish you or wishing you to wish your partner good luck and success in a sports event, a quiz or a competition or test or examination." So, कल्पना चावला ने जब अपने फ्रेंड्स के लिए अपने जूनियर्स को जो मैसेज भिजवाया था उसमें क्या लिखा था उन्होंने? लास्ट चीज, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, मतलब आई विश यू अ ग्रेट जर्नी फ्रॉम योर ड्रीम्स टू सक्सेस. सो आपको अपने फ्रेंड्स को या जिस भी पेयर में आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको एक दूसरे को विश करना है. आप ये बोल सकते हो, आई विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर, आई विश यू अ सक्सेसफुल करियर, आई विश यू एनीथिंग. और इसमें आपको ये 3 पॉइंट्स भी दिए हुए हैं. A sports event, for example, I wish you stand first in the race, or I wish you win this. A quiz or a competition, so I wish you win. Nobody will say I wish you lose. A test or examination, I wish you clear the competition, or no sorry, clear the exam, or I wish you get selected. So similarly, अब हम देख लेते हैं हम किस तरीके से बात करेंगे. आगे भी क्वेश्चन, अभी पूरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. Be sure to thank your partner when he or she wishes you in turn. अब जैसे किसी ने बोला, hey I wish you all the best, तो आप क्या बोलोगे? हट, ऐसे तो बोलोगे नहीं, राइट? क्या बोलोगे? थैंक यू. तो यहाँ पे be sure, make sure that you thank them. You may also look up a telephone directory or go to a post office and get a list in English and Hindi of standard phrases that can be sent in greeting telegrams anywhere in India. So basically आप डिक्शनरी में देख सकते हो, वर्ड्स में देख सकते हो कि आप कैसे थैंक यू बोल सकते हो. Discuss which of these you might use and when. Compare the English and Hindi phrases for expressing good wishes. Do you know such phrases in any other language? Now इतना तो नहीं आएगा आपके एग्जाम में, other language and all. But simple answer, may you win the sports event. I wish you perform your best in the quiz competition. Wishing you all the best for your examination. And in return, what will you say? Thank you. Next question. Do you have a dream or something you very much wish to do? Write a paragraph saying what you want or wish to do. Then say in another paragraph how you think you can make your dream come true. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. अगर कल्पना चावला की लाइफ से कुछ भी सीखा तो ये कि ड्रीम कोई भी हो आप बहुत इजीली अचीव कर सकते हो. द ओनली थिंग इज यू नीड टू हैव अ विजन एंड यू नीड टू हैव सम करेज टू फॉलो योर विजन. अब आपका ड्रीम क्या है? व्हाट डू यू वांट टू डू? व्हाट डू यू वांट टू बिकम? ओके, बहुत अलग अलग ड्रीम्स हो सकते हैं और कोई भी ड्रीम बड़ा और छोटा नहीं होता, अलग नहीं होता, अनोखा नहीं होता, लेकिन ड्रीम ड्रीम होता है. तो तुम्हारा क्या ड्रीम है एंड हाउ डू यू प्लान टू अचीव इट? दिस इज व्हाट यू हैव टू राइट एज एन आंसर टू दिस क्वेश्चन. माई ड्रीम इज टू बिकम अ साइंटिस्ट एंड इन्वेंट समथिंग यूजफुल फॉर द सोसाइटी एंड जनरेशंस टू कम. मेरा ड्रीम क्या है कि मैं एक साइंटिस्ट बनूं और मैं कुछ ऐसी चीज बनाऊं जो आने वाले टाइम में सबको काफी हेल्पफुल हो. ओके, आई थिंक आई कैन मेक माई ड्रीम कम ट्रू बाय स्टडिंग स्ट्रैटेजिकली. अगर मेरे को पता है मुझे साइंटिस्ट बनना है, मतलब मुझे साइंस सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. साइंस में मुझे किस चीज़ में इंटरेस्ट होना चाहिए, मुझे अभी से स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी.
आई विल हैव टू मेक एंड फॉलो अ प्रॉपर टाइम टेबल फॉर द सेम, और इस चीज के लिए मुझे पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि बाय दीज मेनी ईयर्स आई शुड बी एबल टू डू दिस, मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, मुझे इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से पढ़ाई करनी है और मुझे ये डिग्री चाहिए. मेक श्योर एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर इन योर हेड. Now given below are some words that are spelled differently in British and American English. Fill in the blanks accordingly. Now the thing is, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है. अगर जो स्टार्टिंग में मैंने बात की थी कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन मोस्टली सेम होता है लेकिन स्पेलिंग डिफरेंट होती है. ओके, ब्रिटिश इंग्लिश थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, अमेरिकन इंग्लिश जैसा बोलते हैं वैसा लिख देते हैं. जैसे कलर, कलर. सो अपन ब्रिटिश में अपन बचपन से कौन सी स्पेलिंग सीखी है हमने, क्योंकि हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश फॉलो करते हैं, हम लिखते हैं COLOUR, लेकिन अमेरिकन में इट इज COLOR. सो यहाँ पे जितने भी वर्ड्स देखें हम सीधा आंसर देख लेते हैं. ब्रिटिश में आप लिखते हो COLOUR, अमेरिकन में U हट जाता है. लेबर, अमेरिकन में U हट जाता है. देन ट्रैवलर, ट्रैवलर में अब यहाँ पे हमने 2 L लगाए हैं, अमेरिकन में वो एक ही L लगाते हैं. कभी वर्ड में टाइप करके दिखाना, वो अंडरलाइन कर देगा रेड कलर से, क्योंकि वो अमेरिकन इंग्लिश फॉलो करता है. काउंसलर में भी हमने 2 L यूज किए हैं, यहाँ पे हमारा एक L आ गया. सेंटर TRE लिखते हैं और ये CENTER लिखता है, मतलब जैसे सुनाई देता है वैसा लिखता है. नेक्स्ट थिएटर, सो अगेन टर हो जाएगा TER. ऑर्गेनाइज, यहाँ पे SE आ जाता है, ऑर्गेनाइज में यहाँ पे SE आ जाता है. रियलाइज, रियलाइज. उसके बाद डिफेंस, यहाँ पे SE आ गया. ऑफेंस, यहाँ पे भी SE आ गया. ओके, so here we are done with this chapter guys. We are done with the question answers. The chapter was very interesting and it has definitely motivated me. मुझे पता है आप लोग काफ़ी motivated feel कर रहे होगे because chapter था ही ऐसा. Beauty lies in the eyes of the beholder. मतलब ब्यूटीफुल हर कुछ है, हर जगह है, लेकिन ये आपकी आंखों में है. आपको कौन सी चीज़ खूबसूरत दिखती है और कौन सी चीज़ खूबसूरत नहीं दिखती है. Right? With this quote, we are about to start a very beautiful poem. Yes, the name of the poem is Beauty and it is written by A.I. Shaw. So, what is beautiful? So, a person, like when we talk about beautiful, what is beautiful? कौन सी चीज़ खूबसूरत है? Fair is beautiful and dark is not? या maybe a full bloomed tree is beautiful and a shredded tree is not? लेकिन हो सकता है कि वो जो एक ट्री है जिसमें कोई पत्ते नहीं है, एक फोटोग्राफर जो है उसकी नज़रों से देखो, हो सकता है वो एक उसे आर्टिस्टिक चीज़ लगे, उसको वो बहुत ब्यूटीफुल लगे. सो ब्यूटी हर जगह है. ब्यूटी एक छोटे से बच्चे की स्माइल में है, ब्यूटी बारिश में है, ब्यूटी हवा में है, ब्यूटी फ्लावर्स में है, और हो सकता है एक डेजर्टेड सैंड वाला जो पूरा एरिया है उसमें भी होगी. सो ब्यूटी इज़ एवरीवेयर, इट्स जस्ट द वे यू सी इट. Do you agree with me or no? So in this particular poem, this is what we are trying to understand. This is what we are trying to know, and the poet wants us to understand that it is everywhere around you. हर चीज़ खूबसूरत है. हम ये नहीं कहें कि ना अरे नहीं वो तो कितना अगली, अगली जैसा कोई वर्ड होना ही नहीं चाहिए, because everything has been created by God and everything is beautiful and everything has something very special related with it. Right? So on this note, we are going to start with our beautiful poem Beauty, and let's see the introduction. In this poem, beauty has been defined. इस poem में beauty को define किया गया है. Remember this thing that beauty को आप define नहीं कर सकते. ब्यूटी की एक मे बी डिक्शनरी में एक पर्टिकुलर कुछ फ्रेजेस, कुछ वर्ड्स में उसकी ब्यूटी को डिफाइन किया गया होगा, लेकिन इट इज़ अबाउट अ पर्सन. मेरे लिए जो चीज़ ब्यूटीफुल है वो हो सकता है आपके लिए नहीं हो, आपके लिए जो ब्यूटीफुल है हो सकता है मेरे लिए नहीं हो. सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज देयर इन एवरीथिंग. मेरा ये जो पेन है मुझे तो ये भी ब्यूटीफुल लगता है, मेरा ये बोर्ड भी ब्यूटीफुल है, मेरा ये रूम ब्यूटीफुल है, बिकॉज आई एम हैप्पी ओवर हियर. राइट? सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस अमेजिंग पोएम. ब्यूटी इज सीन in the sunlight, the trees, the birds, corn growing and people working or dancing for their harvest.
ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी कहाँ कहाँ दिखती है? इन द सनलाइट. सो अब कितने लोग हैं जो जल्दी उठते हैं, उन्होंने सनराइज देखा है? हैव यू सीन सनराइज? Like when the entire sky turns green, sorry not green, red and orange and pink and then yellow and different beautiful shades. पर जब सन ऊपर आता है, जब आप सन को एक्चुअली देख पाते हो, 12 o'clock नहीं देख पाओगे, लेकिन उस वक्त ऐसा लगता है इट्स लिटरली अ ह्यूज ball of fire. It is something that you would want to paint. It is something that you would want to capture in your camera. और जो हमारी आइस का कैमरा होता है उसमें तो हम डेफिनेटली उसे कैप्चर कर लेते हैं. सो ब्यूटी है वहाँ पे. द ट्रीज एंड द बर्ड्स. आप बर्ड्स को देखो, कभी कभी किसी बर्ड को नोटिस करना, आप उसको देखते ही रहोगे कि कितनी छोटी सी है, लेकिन उसके बाद उसकी फ्लाइट, द वे इट विल पिक अप दो स्ट्रॉज एंड मेक इट्स नेस्ट, द वे इट विल टेक केयर ऑफ इट्स ऑफस्प्रिंग्स. जब वो आपकी तरफ देखती है, जब वो चर्प करती है, एवरीथिंग इज ब्यूटिफुल. द trees, luscious green trees, maybe with fruits, maybe without fruits, but the trees are always so beautiful. Corn growing and people working. जो खेत होते हैं जिसमें एकदम जो है कॉर्न ग्रो कर रहा है, कोई भी खेत जो एकदम लहलहा रहा है, वो खेत कितना खूबसूरत होता है. और जब आप हार्वेस्ट कर रहे हो, जो लोग होते हैं, जैसे मैंने खेत पे बहुत काम किया, मेरी बहुत अमेजिंग फसल हुई है. अब हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? वो टाइम जिसमें आपने पूरा अपने हार्वेस्ट को देख रहे हो, आपने पूरा काट लिया, अब आपके पास पूरा आपका सामान रखा है, अब आप बेचने के लिए जा रहे हो. सो हार्वेस्ट मतलब जो आपका यील्ड है, जो आपका प्रोडक्शन हुआ है. सो दैट इज ऑल्सो वेरी ब्यूटिफुल. क्यों? क्योंकि उसमें किसी की मेहनत है. सपोज यू हैव क्रिएटेड अ ड्राइंग, हो सकता है वो ड्राइंग बहुत ब्यूटीफुल नहीं हो, बट यू हैव क्रिएटेड इट. सो दैट्स व्हाई यू सी एंड यू फाइंड इट ब्यूटीफुल, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स. मम्मा ने अगर कुछ बहुत टेस्टी बनाया है तो वो चीज़ खूबसूरत है. वो क्यों खूबसूरत है? क्योंकि उनके एफर्ट्स हैं. एक छोटी सी बच्ची जब अपने पापा के लिए एक रोटी बनाती है, वो रोटी हो सकता है एकदम किसी शहर का नक्शा, किसी देश का नक्शा लग रही हो, लेकिन उसके बाद भी उसके पापा के लिए वो सबसे ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज उसमें शी हैज़ गॉट हर एफर्ट्स एंड लव. ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind sighing, rain falling, or the singer chanting, anything in earnest. Beauty is heard. Beauty सिर्फ देखने में नहीं है, ब्यूटी आपको सुनाई देती है. एक ब्लाइंड पर्सन से बात करना, जब सुबह होती है, जब चिड़ियों की चहचहाहट होती है, या रास्ते की आवाज़ होती है, हवा की आवाज़ होती है, उसको वो हर आवाज़ खूबसूरत लगती है. एंड सेम फॉर अस. जैसे अगर आप किसी सी शोर पे बैठे हुए हो, आपको वो वेव्स की आवाज़ आ रही है, दैट्स व्हाट, इट्स ब्यूटीफुल. इट इज़ अगेन फुल ऑफ ब्यूटी. ब्यूटी इज़ हर्ड इन द नाइट. रात में आपको जो वो झिंगूर की आवाज़ आती है, हवा चलने की आवाज़ आती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं? दिस आर ब्यूटीफुल थिंग्स. विंड साइंग एंड रेन फॉलिंग, बारिश की आवाज़, बारिश की खुशबू, बारिश के बाद वो जो ऐसा लगता है कि पूरी जो आपकी अर्थ है, पूरा आपका जो एवरीथिंग अराउंड यू, दे हैव टेकन अ वेरी फ्रेश शावर, एवरीथिंग लुक्स सो ब्यूटीफुल. और द सिंगर चैंटिंग. एक कोई सिंगर है, अगर वो कुछ गा रहा है, चैंटिंग का मतलब क्या होता है? वो कुछ गा रहा है, टू मेक मेलोडियस साउंड विद द वॉइस स्पेशली. सो जब वो कुछ गा रहा है, और वो भी एनीथिंग इन अर्नेस्ट, अर्नेस्ट मतलब बहुत सीरियसली, अगर वो कुछ गा रहा है, उसमें भी ब्यूटी है. उस आवाज़ को सुनो, उस आवाज़ में भी ब्यूटी है. ब्यूटी इज इन योर सेल्फ. गुड डीड्स, happy thoughts that repeat themselves in your dreams, in your work and even in your rest. अगर आप एक अच्छी सोच रखते हो, अगर आपके अंदर अच्छी फीलिंग्स हैं, किसी के लिए आपके अंदर जेलसी नहीं है, किसी के लिए आपके अंदर गुस्सा नहीं है, वो हैप्पी थॉट्स हैं अगर, तो आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो. ब्यूटी इज इन योर सेल्फ. गुड डीड्स, डीड्स का मतलब होता है योर वर्क, योर एक्शंस. तो आप जब अच्छे एक्शंस करते हो तो आप कितने ब्यूटीफुल हो. ज़रूरी नहीं है दैट यू हैव टू हैव द फेयरेस्ट ऑफ द स्किन और द स्मूदेस्ट ऑफ द स्किन, और यू हैव टू हैव द मोस्ट ब्यूटीफुल हेयर और एनीथिंग, बट येस, आपके एक्शंस, द वे यू टॉक टू समवन, it's all beautiful when it is pure and it doesn't have anything related to, you know, something which can harm anyone. अगर हमारे अंदर अच्छे थॉट्स हैं, अगर हमारे एक्शंस अच्छे हैं, सो दैट इज ऑल वेरी ब्यूटिफुल. दैट रिपीट देमसेल्व्स मतलब आप
हमेशा, चाहे आप अपने ड्रीम्स में हो, चाहे आप काम कर रहे हो, आप अगर अच्छा काम कर रहे हो तो आप बहुत ब्यूटीफुल हो. एंड इवन इन योर रेस्ट, मतलब इवन व्हेन यू आर लाइंग डाउन, इवन व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, उस वक्त भी क्या हम बैठे बैठे किसी का बुरा सोच रहे हैं? क्या हम उस वक्त बैठे हुए कुछ गलत खराब सोच रहे हैं? अगर नहीं, अगर हम किसी का अच्छा सोच रहे हैं, किसी के भलाई के बारे में सोच रहे हैं, तो हम बहुत ब्यूटीफुल हैं. सो दिस वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम अबाउट ब्यूटी. सो गाइज, पता है ये जो बोलते हैं ना, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, जिसका मतलब कि खूबसूरत आपकी आंखों में होता है. खूबसूरती जो है वो आपकी आंखों में होती है. हो सकता है आपको कोई बंदी हो, बहुत अमेजिंग कपड़े पहने, बहुत अमेजिंग, हो सकता है आपको ब्यूटीफुल लगे, हो सकता है किसी और को ना लगे. तो आपकी आंखों में इतनी खूबसूरती होनी चाहिए कि आपको सब खूबसूरत लगे. और वो खूबसूरती कैसे आएगी? जब आपका दिल बहुत खूबसूरत होगा. दिल कैसे खूबसूरत होगा? जब दिमाग में किसी के लिए कोई खराब थॉट्स नहीं होंगे. सो दैट वाज इट, आवर पोएम. लेट्स क्विकली लुक एट द समरी. The poem has 3 stanzas and each talks about the beautiful things that could be seen, heard and felt through the heart respectively. So, चाहे बारिश की खुशबू है, आप उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन you can feel it. आप एक सनराइज को देख सकते हो लेकिन सुन नहीं सकते. So there are different things that there are certain things that you can see, there are certain things that you can hear, and there are a lot of things that you can feel. Beauty can be seen, heard and felt. It is seen in the sunlight, the trees, the birds, the growing corn. It is also seen in the working people or those people who dance for their harvest. जब आपको पता है, जब एक किसान जो होता है, एक फार्मर जो होता है, वो बहुत मेहनत करके अपना जो खेत है उसमें पूरा बीज डालता है, उसको उसे जोतता है, और फाइनली जब एक उसका जो पूरा प्रोडक्शन होता है, जब उसके जो पूरे खेत होते हैं उसमें सारी चीज़ प्रोडक्शन उसका कंप्लीट हो जाता है, तो उससे ज़्यादा खुश कोई नहीं होता. और वो इतना खुश होता है कि दे डांस बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, क्योंकि उनकी मेहनत रंग लाई है. ब्यूटी कैन बी हर्ड इन द नाइट. इट इज हर्ड व्हेन द विंड साइज, रेन फॉल्स और अ सिंगर चैंट्स इन अर्नेस्ट. ब्यूटी आप रात में सुन सकते हो, कहाँ कहाँ, चाहे जब हवा चल रही होती है, बारिश हो रही होती है, या कोई दूर जो है कोई सिंगर है, वो बहुत ही सीरियसली अपना रियाज कर रहा है, या वो कोई गाना गा रहा है. ब्यूटी कैन बी फेल्ट. इट इज वंस फेल्ट इन वंस ओन सेल्फ. हमें अपने अंदर वो ब्यूटी फील होती है. इट इज फेल्ट इन द माइंड व्हेन वी थिंक ऑफ गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स. आप कभी बहुत अच्छी जगह कहीं गए हो, आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, आप अपनी फैमिली के साथ वेकेशन पे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो, कोई बर्थडे पार्टी एंजॉय कर रहे हो, जब ये अच्छी हैप्पी मेमोरीज को आप वापस सोचते हो, देन ऑल्सो यू फील ब्यूटिफुल. दे रिपीट देमसेल्व्स इन ड्रीम, इन वर्क और इवन इन रेस्ट. और ये जो हैप्पी थॉट्स हैं, ये हमेशा हमें आते रहते हैं और हमें ब्यूटिफुल फील कराते हैं. ब्यूटी लाइज विद दोज हु आर पॉजिटिव टूवर्ड्स लाइफ एंड इट गेट्स रिफ्लेक्टेड. जितने भी लोग हैं, अगर आप लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हो, आपको लगता है नहीं हर चीज़ हो सकती है, हर चीज़ खूबसूरत है, तो वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, और आपको ही नहीं, आपके आसपास जितने भी लोग हैं, आपके उस एटीट्यूड को देख के उनको भी वही चीज़ फील होगी. So this was a very short summary of our poem Beauty. Now let's see the literary devices. Now here the rhyming scheme, if you will see, there is no specific rhyming scheme in this particular poem. ये जो पोम है इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. अगर हम रिपीटेशन की बात करें तो इसमें कोई रिपीटेशन भी नहीं है. तो इट इज़ जस्ट लाइक अ नरेटिव सॉर्ट ऑफ अ पोम, जहाँ पे आप बस कुछ लिख रहे हो, बट यू आर नॉट फॉलोइंग एनी राइमिंग पैटर्न और एनी रिपीटेशन और एनी स्कीम. गुड. So we are done with this, and now we are going to start with the question answers for this particular poem. The poet says, beauty is heard in. Beauty is heard. Can you hear beauty? Add a sound that you think is beautiful to the sounds the poet thinks are beautiful. Now, can you hear beauty? No, beauty is an abstract noun, right? You cannot hear beauty. तो ब्यूटी के लिए लेकिन ऐसे कुछ साउंड्स बता सकते हो जो कि पोएट के हिसाब से बहुत ब्यूटीफुल हैं. एग्जाम्पल, सो हमारे यहाँ पे आंसर कैसे हैं? द पोएट कीट्स सेड, heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter. What do you think this means? Have you ever heard a song in your head
लॉन्ग आफ्टर द सॉन्ग वाज सung और प्लेड। एक जो पोएट है जो कीट्स है, उन्होंने ये 2 लाइंस कही हैं, जिसका मतलब जो आप सुनते हो वो तो बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कभी कभी कुछ साइलेंस होता है, वो जो अनहर्ड होता है वो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। नाउ इस चीज़ का मतलब बताओ। एंड हैव यू एवर हर्ड अ सॉन्ग इन योर हेड? मतलब जैसे कोई गाना बज रहा है, ठीक है, आपने गाना सुन लिया, गाना बंद हो गया, लेकिन वो फिर भी हमारे कानों में चलता रहता है। सो ये क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। पहले तो आपको बताना है कि आप ब्यूटी को सुन सकते हो क्या। दूसरा, आपको ऐसे बहुत सारे साउंड्स बताने हैं जिसमें ब्यूटी को आप सुन सको एज पर द पोएट। देन यू हैव टू टॉक अबाउट कि ये जो 2 लाइन्स है इसका मतलब क्या होता है कि heard melodies are sweet and but those unheard are sweeter, इसका क्या मतलब होता है। लास्ट में डू यू एवर थिंक जैसे कि आपके कानों में वो गाना वापस बज रहा हो। बड़े सारे क्वेश्चन है, अब इसका आंसर देख लेते हैं फटाफट। वी डू हियर ब्यूटिफुल साउंड्स। फॉर इंस्टेंस, जब कोई गिटारिस्ट गिटार प्ले कर रहा है, जब एक कोयल गाना गा रही है, जब बारिश की बूंदें नीचे पड़ रही हैं, और जब एक बहुत ठंडी सी हवा चल रही है, ये सारी वो आवाज़ें हैं जब आपके कानों को बहुत अच्छी लगती हैं। तो ये इसको हम देख लेते हैं। We do hear beautiful sounds. For instance, when a guitarist play a guitar, when a cuckoo sings, when the raindrops fall on the ground, when a soft breeze flows, etc. Now, heard melodies are sweet and but those unheard are sweeter. इसका भी मतलब देख लेते हैं। This means, इसका क्या मतलब है? This means कि जो हमारी imagination है, that our imagination can succeed and be more beautiful than the reality. मतलब रियल में जो आवाज़ें होती है, रियल में जो चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम चीज़ें इमेजिन करने पे आए तो हमें उससे भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सुनाई दे सकती हैं। Heard melodies are the ones which are actually being played around. Heard melodies मतलब वो खूबसूरत आवाज़ें जो कि आपके आसपास आप सुन सकते हो। But the unheard are the ones that our mind plays in our heart. लेकिन जो अनहर्ड होती हैं वो इमेजिनेटिव वॉइसेस होती हैं, मेलोडीज होती हैं जो हमारा दिमाग हमारे दिल में प्ले करता है। एंड सच साउंड इज स्वीटर एंड क्लोजर टू आवर हार्ट। और ऐसी जो आवाज़ें होती हैं वो बहुत स्वीट होती है और वो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। Last question. Yes, I have heard songs in my head long after the song was sung or played. Those are my most favorite songs. ऐसे बहुत बार होता है जब कभी कभी आप वादियों को देख के, कभी कोई पर्टिकुलर एग्जाम्पल को देख के आपके दिमाग में गाने भी आ जाते हैं, वो कान में बजते रहते हैं, because you love those songs, right? So here we are done with this particular question. Now let's start with the next question. Read the first and second stanzas of the poem again and note the following phrases. Corn growing, people working or dancing, wind sighing, rain falling and a singer chanting. अब इसको corn growing, इसको हम कैसे लिख सकते थे? corn that is growing. people working को हम कैसे लिख सकते थे? people who are working or dancing. so can you rewrite the other phrases like this? मतलब जैसे wind sighing और rain is falling और the singer is chanting. तो आपको इसको completely लिखना है क्योंकि poet ने सब short phrases use किए हैं. So the answer can be, here are some more examples of such short phrases like stream flowing, wind blowing, children laughing, mob shouting, etc. And I think the poet uses the shorter phrases to give a musical rhythm to the poetic line. So ये जो poets होते हैं ये छोटे छोटे phrase क्यों use करते हैं? ताकि एक थोड़ी सी poetic feeling आए, थोड़ी सी rhyming feeling आए. That's it. Okay? So here now you have another question. Find pictures of beautiful things you have seen or heard of. भाई ये तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा. Whatever beautiful you have seen or heard, click pictures and share with your friends. And now last question. Write a paragraph about beauty. Use your own ideas along with the ideas in the poem. Poem में तुम्हें बहुत सारे ideas मिले हैं. अपने भी ideas add करना है and you have to write a paragraph on beauty. A beautiful thing brings smile in face of everyone that sees or feels it. एक beautiful thing जो होती है, beautiful काम, beautiful thing, beautiful song, beautiful music, वो जो भी उसे सुनता है या उसे फील करता है उसके फेस पे एक बहुत खूबसूरत सी स्माइल लेके आ जाती है. A beautiful blessing of nature or lap of mother
cuddling of sibling, reading about great people give happiness and endless immortal feel. मतलब जब आप बारिश में नहा रहे हो या अपनी मम्मा की गोदी में हो या अपने भाई बहन को या अपने कजन्स को जोर से हक कर लिया है या आप बड़े बड़े लोगों के बारे में पढ़ रहे हो, जैसे हमने कल्पना चावला के बारे में पढ़ा था, उनके अच्छे कामों के बारे में पढ़ा था, तो उससे हमें एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आती है. इन द नेचर एवरीवन हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी. हर किसी के लिए ब्यूटी की डेफिनेशन अलग है और हर नेचर में हर जगह ब्यूटी फैला हुआ है और अलग अलग तरीके की ब्यूटीफुल चीज़ें हैं. It depends on one's perspective that how he or she takes it. ये हमारे पर्सपेक्टिव मतलब होता है नज़रिया, आप किस तरीके से देखते हो, ये आपके नज़रिए पे डिपेंड करता है कि आप ब्यूटी को कैसे लेते हो. So let's look at MCQs. इसमें we have got around 40-45 MCQs. So let's begin. Kalpana Chawla was born in. Kalpana Chawla was born in where? Karnal, Punjab. पंजाब की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, but it's okay. Delhi. Where? The answer is Karnal. In which school of Karnal did Kalpana Chawla study? कल्पना चावला ने कौन से स्कूल में पढ़ाई करी थी? DPS, DAV, टैगोर स्कूल या सेंट्रल स्कूल? The answer is टैगोर स्कूल. A space shuttle is. स्पेस शटल क्या होता है? एक होवरक्राफ्ट होता है, एक स्पेस क्राफ्ट होता है, स्पेस स्टेशन होता है या रॉकेट होता है? एक स्पेस शटल जो है स्पेस क्राफ्ट होता है. ओके. Going to US for the master's degree was not liked. जब कल्पना चावला ने डिसाइड किया that she wants to go to the US क्योंकि वो वहाँ से मास्टर्स करना चाहती है, डिसीजन किसको पसंद नहीं आया था? उनकी मदर को, उनके ट्यूटर को, उनके फादर को या नॉर्मल लोगों को? The answer is her father. By Kalpana's father. He did not like कि कल्पना जो है she was going out. कल्पना earned her PhD in. कल्पना ने अपनी PhD कहाँ से करी? मतलब किस में करी? एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एस्ट्रोफिजिकल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग? कहाँ किया उन्होंने? उन्होंने किस सब्जेक्ट में किया था? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में. What is the meaning of the phrase awe-inspiring? When I say oh my god this is awe-inspiring, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है something that causes the feeling of respect. मतलब जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा मोहित हो जाते हो, दैट इज ऑ इंस्पायरिंग. ओके. When Columbia lost contact with NASA, it was traveling over. जब Columbia was the name of the spacecraft जिसमें कल्पना चावला ट्रैवल कर रही थी. So जब कोलंबिया का नासा के साथ कनेक्शन टूट गया तब वो किसके ऊपर ट्रैवल कर रहा था? मतलब ट्रैवलिंग ओवर किस स्पीड में ट्रैवल कर रहा था? 10,000 किलोमीटर पर आवर, 20,000, 30,000 या 40,000? तो जब कनेक्शन टूटा तब वो 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था. कौन? कोलंबिया, जो कि स्पेसक्राफ्ट था. विद होम शी गॉट मैरिड. उनकी किससे शादी हुई? अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जॉन पियर हैरिसन या एक पायलट? इनकी शादी हुई थी एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जिनका नाम था जॉन पियर हैरिसन. The crew performed experiments such as pollinating plants and foster computer chips price tag of about. अब ये जो पूरी क्रू थी जो स्पेसक्राफ्ट में जो लोग गए थे, उन लोगों ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए थे स्पेस पे जाके. जैसे उन्होंने पॉलिनेशन ट्राई किया था, प्लस उन्होंने कंप्यूटर चिप्स को फोस्टर करने की कोशिश की थी. इसके लिए कितने पैसे लगे? मतलब इसके लिए जो चिप्स वो लोग जाके फोस्टर करने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए कितने पैसे लगे? $56 million. कल्पना चावला's पेरेंट्स अलाउड हर टू ज्वाइन. कल्पना चावला के पेरेंट्स ने उन्हें किस चीज के लिए अलाउ किया? इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज, इंडियन नेवी या मेडिकल कॉलेज? ऑब्वियसली शी वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी या मेडिकल कॉलेज. उन्होंने उन्हें अलाउ किया था इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करने के लिए. द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज सेट टू बी गुड फॉर. ये जो स्पेस शटल था कोलंबिया, इसको कहा जाता था कि ये कितनी फ्लाइट्स के लिए, मतलब कितनी उड़ानों के लिए ये गुड इनफ है? 50 फ्लाइट्स, 70 फ्लाइट्स, 80 फ्लाइट्स या 100 फ्लाइट्स? 100 फ्लाइट्स मतलब वो जो है 100 बार फ्लाई कर सकता है. इट वॉज गुड इनफ फॉर दैट नंबर ऑफ फ्लाइट्स. कोलंबिया मेट विथ इट्स ट्रैजिक फेट इन इट्स. लेकिन वो अपनी कौन सी भी फ्लाइट कर रहा था जब उसका जो है उस पर ब्लास्ट हो गया? What is the answer? 20th space flight, 25th, 28th या 50th?
द आंसर इज 28। जो शटल मतलब स्पेस क्राफ्ट जो था, जो 100 फ्लाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्टली बनाया गया था, वो 28th स्पेस फ्लाइट में जाके क्रैश हो गया। शी वॉज कॉल्ड एन, अब ये तो चैप्टर में है, कल्पना चावला को क्या कहा जाता है? इंडो एंग्लो अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन, एस्ट्रो अमेरिकन या एंग्लो इंडियन? चैप्टर में भी लिखा हुआ है, इन्हें हम इंडियन अमेरिकन कहते हैं, इंडियन अमेरिकन। ओके, व्हाट वाज द स्पेस शटल्स नेम कैरिंग हर टू स्पेस? जो स्पेस शटल उन्हें स्पेस में लेके गया उसका नाम क्या था? ये अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, अपोलो, इसरो, वाइकिंग या कोलंबिया? आंसर इज कोलंबिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी वेंट टू द यूएस, वो यूएस गई, क्यों गई थी? नासा ज्वाइन करने के लिए, मास्टर डिग्री के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने के लिए या बैचलर्स डिग्री के लिए? क्यों गई थी वो यूएस? थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वो अपनी मास्टर्स की डिग्री के लिए गई थी। She was the dash Indian American woman to go into space. वो पहली भारतीय अमेरिकन महिला थी जिन्होंने स्पेस में ट्रैवल किया था। The answer is first. She was the first Indian American woman to go into space. Next question is, where were her parents at the time Columbia lifted off? जब कोलंबिया ने टेक ऑफ किया स्पेस में जाने के लिए, तब वो उसके पेरेंट्स कहाँ पे थे? वो कैनेडी स्पेस सेंटर में थे, दिल्ली में थे, करनाल में थे या इसरो में थे? द आंसर इज वो स्पेस सेंटर में थे। तो जब उनकी जो बेटी थी वो उस फ्लाइट के लिए टेक ऑफ कर रही थी, तब वो स्पेस सेंटर में थे, कैनेडी स्पेस सेंटर में। शी वॉज सिलेक्टेड एज नासा फॉर द ट्रेनिंग, उनको नासा में किस चीज़ की ट्रेनिंग, मतलब उनको नासा में ये जो एरोस्पेस ट्रेनिंग के लिए जब सिलेक्ट किया गया, स्पेस में ट्रैवल करने की ट्रेनिंग के लिए जब सिलेक्ट किया गया, तब कौन सा सन चल रहा था? What was the year? 1994, 1990, 2000 या 2005? The answer is 1994. Before joining NASA, she was. NASA को ज्वाइन करने के पहले वो क्या थी? एक आर्किटेक्ट थी, एक पायलट थी, प्रोफेसर थी या साइंटिस्ट थी? वो एक पायलट थी। कल्पना हैड एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज, कल्पना का नॉलेज जो था वो एनसाइक्लोपीडिक था। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? इट्स अ बुक जिसमें हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, तो उनका नॉलेज एनसाइक्लोपीडिक था। इसका मतलब क्या था? शी न्यू एवरीथिंग अबाउट एरोनॉटिकल, उन्हें एरोनॉटिकल के बारे में सब कुछ पता था। शी हैड मास्टरी ओवर बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड इंजीनियरिंग, उनको बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स और इंजीनियरिंग के बीच में के ऊपर मास्टरी थी। हैविंग नॉलेज ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, उनको काफी सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पता था। या शी न्यू द होल ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया, ब्रिटानिका एनसाइक्लोपीडिया पूरी ने रटी हुई थी। द आंसर इज उनको काफी सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज था, काफी सारे सब्जेक्ट्स का, इसीलिए उनको चलता फिरता एनसाइक्लोपीडिया कहा जाता था। द पीरियड ऑफ हर फर्स्ट मिशन इन स्पेस वॉज, जो फर्स्ट स्पेस मिशन था उसमें वो कितने टाइम तक स्पेस में थी? 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स, 16 डेज 15 आवर्स 34 मिनट्स, 15 डेज 5 आवर्स 5 मिनट्स एंड 15 डेज 8 आवर 37 मिनट्स। अगर आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छे से दिया है तो आपको इसका आंसर पता होगा। क्या है इसका आंसर? 15 डेज 16 आवर्स 34 मिनट्स। बाय प्रोफेशन कल्पना चावला वॉज, कल्पना चावला का प्रोफेशन क्या था, मतलब वो क्या करती थी? शी वॉज अ प्रोफेसर हु टॉट इन अमेरिका, और शी वॉज एन इंजीनियर, और वो एयरक्राफ्ट बनाती थी। वो एक एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में गई थी। वो एक सोशल वर्कर थी जो इंडिया में सर्व करती थी। द आंसर इज वो एक एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में काम करती थी। कल्पना वॉज अ रेसिडेंट ऑफ, कल्पना कहाँ की रेसिडेंट थी? हरियाणा, इंडिया, यूएस या कोलंबिया? वो यूएस की रेसिडेंट थी। बोथ कल्पना एंड जॉन पियर, जॉन पियर कौन थे? उनके हस्बैंड थे। वो दोनों कहाँ थे? इंडिया में बॉर्न हुए थे, अमेरिका में बॉर्न हुए थे, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स थे या करनाल में रहा करते थे? वो दोनों फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स थे। इन कल्पना चावलाज ओपिनियन एवरीवन हैज, कल्पना चावला के ख्याल में हर किसी के पास क्या होते हैं? पैसे, एजुकेशन, फेम? नहीं, हर किसी के पास होते हैं ड्रीम्स, सपने, जिसको पूरा करने के लिए सिर्फ डिटर्मिनेशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कल्पना चावला बिकेम एन इंस्पिरेशन फॉर, कल्पना चावला बहुत सारे लोगों की एक इंस्पिरेशन बन गई थी। किन लोगों की? पूरे दुनिया के लोगों की, फॉर ऑल इंडियंस, इंडियन यूथ या पीपल ऑफ कोलंबिया? जितने भी इंडिया के यूथ थे उनके लिए वो एक इंस्पिरेशन बन गई थी। अब वो कहाँ बॉर्न हुई थी? अमेरिका, अ स्मॉल इंडियन टाउन, अ बिग इंडियन सिटी,
अ मेट्रोपॉलिटन सिटी? द आंसर इज एक छोटे से स्मॉल इंडियन टाउन में पैदा हुई थी वो। फ्रॉम कोलंबिया कल्पना सेंट अ मैसेज टू, कोलंबिया से कल्पना ने एक मैसेज भेजा था। किसे भेजा था? हरियाणा यूनिवर्सिटी, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, हर कॉलेज इन चंडीगढ़ या मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उन्होंने चंडीगढ़ में जहां से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था वहां के लोगों के लिए एक मैसेज भेजा था। What is beauty? Beauty is a thing of joy forever. एक ऐसी चीज जो हमेशा आपको हैप्पीनेस देती है। Everything in America, मतलब अमेरिका में जो है सब ब्यूटी है। Lost forever या short lived? ब्यूटी ऐसी कोई चीज होती है जो हमेशा के लिए खो चुकी है या जिसकी जिंदगी बहुत कम होती है। The answer is a thing of joy forever. Beauty is not what you see outside. Beauty is not that stays only for some time. Beauty जो एक बहुत famous proverb है, Beauty lies in the eyes of the beholder. जो देखता है उसकी आंखों में खूबसूरती होती है। उसके बाद if you feel happy आपको हर कुछ खूबसूरत लगता है, if you do not feel happy आपको हर कुछ sad लगता है। So it is a thing of joy forever. ये एक ऐसी खुशी है जो हमेशा आपके साथ होती है। नेक्स्ट इज ह्यूमन बींग्स हैव क्रिएटेड ब्यूटी थ्रू। ह्यूमन बींग्स जो हैं वो किस तरीके से ब्यूटी को क्रिएट करते हैं? उनके अच्छे कर्मों से, देयर गुड डीड्स, देयर अनप्लेजेंट बिहेवियर, अपने अनप्लेजेंट बिहेवियर से, द एफर्ट ऑफ अदर्स, दूसरों के एफर्ट से, या उनकी मस्कुलर स्ट्रेंथ। द आंसर इज अपने अच्छे कर्मों से हम ब्यूटी को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है वन फील्स हैप्पी टू सी द सन। कोई भी इंसान जो है वो सन को देख के बहुत हैप्पी फील करता है। कब? जून के मंथ में, दिसंबर के मंथ में, सोलर एक्लिप्स जब आ रहा होता है वो भी नेकेड आई से, या पूरे दिन। कब होता है? अगर मतलब लेट्स से जून में या मई में जब बहुत ही ज्यादा गर्मी होती है, स्कॉचिंग हीट होती है, तब आपको सन को देख के बड़ी खुशी होगी? नहीं होगी। लेकिन दिसंबर में जब एकदम कड़कड़ाती ठंड है तब आपको अगर थोड़ी देर सनलाइट मिले तो आपको कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो द आंसर इज इन द मंथ ऑफ दिसंबर। द पोएट्स हैव बीन सिंगिंग ऑफ ब्यूटी। जो पोएट्स हैं वो ब्यूटी के बारे में कब से बात कर रहे हैं? 1999 से, या बहुत पुराने ज़माने से, जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब से, या काफ़ी पुराने टाइम से? जब से दुनिया की शुरुआत हुई है तब से वो ब्यूटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सटर्नल ब्यूटी, इंटरनल ब्यूटी, सोल ब्यूटी एक्सेट्रा। ब्यूटी कैन बी, क्या ब्यूटी को हम सिर्फ देख सकते हैं या सिर्फ सुन सकते हैं, या सुन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं और महसूस भी कर सकते हैं, या वो परमानेंट होती है, एक ही जैसे दिखती है? ब्यूटी को हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूटी हर चीज में है। इफ आई टॉक अबाउट दिस बोर्ड, आई एम सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड दैट हमारे पास ये फैसिलिटी है। दिस इज द ब्यूटी। अगर इस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो, यू आर सो ब्लेस्ड कि आपके जो कान है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और आंखें भी सही तरीके से काम कर रही हैं। ये जो आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू भगवान, क्योंकि आपने हमको ये सारी फैसिलिटीज़ दी हैं कि हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ये भी तो ब्यूटी है, राइट? सो ब्यूटी को देखा भी जा सकता है, सुना भी जा सकता है, महसूस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट इज वाई पीपल आर वर्किंग और डांसिंग। लोग क्यों काम कर रहे हैं या क्यों डांस कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उनकी फसल तैयार हो चुकी है फॉर देयर हार्वेस्ट, फॉर देयर एंजॉयमेंट, बस अपनी खुशी के लिए या अपने हार्ड वर्क के लिए। आंसर इज हार्वेस्ट। जब आपकी जो फसल है वो पक जाती है, आपके अंदर एक अलग खुशी होती है। क्यों? क्योंकि आपकी मेहनत रंग लाई है, इसीलिए वो अपनी हार्वेस्ट को देख के खुश हो रहे हैं। शेली सेड ब्यूटी इज हर्ड, हर्ड मेलोडीज आर स्वीट, ब्यूटी इज सीन, ब्यूटी इज ट्रुथ एंड गुडनेस। शेली के अनुसार हर्ड मेलोडीज आर स्वीट। द आंसर इज जो आप मेलोडीज सुन सकते हो वो स्वीट होते हैं। वॉट इज ग्रोइंग, अब यहाँ पे जो हम खेतों की बात कर रहे हैं उसमें वो क्या उगा रहे हैं? कॉर्न, फ्रूट या फ्लावर? कॉर्न। ओके, नेक्स्ट इज द पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी विच इज सीन। पोम ऐसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है जो कि आप अंधेरे में देख सकते हो, अपने अंदर देख सकते हो, ड्यूरिंग द डे देख सकते हो, या नेचर में देख सकते हो। अब जब वो झरनों की बात कर रही है या कौन की बात कर रही है तो वो नेचर की बात कर रही है। तो पोम जो है वो ऐसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर रही है जो आप अपने आसपास में नेचर में देख सकते हो। द पोएट इज थिंकिंग ऑफ द ब्यूटी ऑफ, पोएट किसकी ब्यूटी के बारे में सोच रहे हैं? सोल की, साउंड की, नेचर की या पीपल की? आंसर इज नेचर। द पोम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी विच इज सीन इन नेचर, ये अभी हमने देख लिया। इसके बाद है व्हाट इज फॉलिंग, क्या गिर रहा है? रेन, ब्यूटी या सिंगर? सिंगर गिर सकता है, रेन गिर सकती है, हाँ।
ब्यूटी नहीं गिर सकती। द आंसर इज रेन इज फॉलिंग, छमा छम छम। नेक्स्ट इज व्हाट इज सिंगिंग? रेन, विंड, ब्यूटी और अर्थ। कौन गाता है? हवा गा रही है। Next is the phrase wind sighing shows that the wind is unhappy, passing through the trees, blowing in the dark or not blowing. इसका मतलब होता है wind जो है वो trees से pass कर रही है। Beauty depends on, beauty किस चीज पे depend करती है? soul पे, spirit पे, mind पे या आसपास किसी भी चीज पे? The answer is mind. Beauty हमारी सोच पे depend करती है। नेक्स्ट इज वाइल रेस्टिंग ब्यूटी कैन बी सीन इज, जब हम रिलैक्स कर रहे होते हैं, रेस्ट कर रहे होते हैं, तो ब्यूटी हमें किस चीज़ में दिखाई देती है? रेस्ट में, वर्क में, हैप्पी थॉट्स में या गुड ड्रीम्स में? तब वो हमें हैप्पी थॉट्स में दिखाई देती है। वर्क कैन बी ब्यूटिफुल, काम बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आप एक सेल्फलेस वे में, सेल्फलेस मतलब जहाँ पे आप कोई चीज़ उम्मीद नहीं कर रहे हो, सेल्फलेस मैनर में करो, या अगर आप आराम करते हुए करो, या कोई चीज़ जो हमें पैसा दे रही है, या कोई चीज़ जो हमें नाम शोहरत दे रही है। द आंसर इज वर्क ब्यूटीफुल हो सकता है अगर आप उसको सेल्फलेसली करो, अगर आप उसको बिना किसी एक्सपेक्टेशन के करो। लाइफ कैन बी ट्रूली ब्यूटिफुल इफ वी ऑलवेज, तो आपकी जो ज़िंदगी है वो भी बहुत ज़्यादा हसीन हो सकती है, खूबसूरत हो सकती है अगर हम हमेशा अच्छा काम करें, अगर हम रेस्ट करें, अगर हम बहुत सारा पैसा कमा लें, या अगर हमारे पास हैप्पी थॉट्स हैं। द आंसर इज अगर हमारे पास अच्छे थॉट्स हैं, हैप्पी थॉट्स हैं, तो हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो सकती है। सो दैट इज़ इट. Here we are done with this poem as well. Thank you so much for watching this video. I'm going to see you soon in my next video. Now, where can you find all these videos? Here on our website magnetbrains.com, जहाँ पे नीचे आपको यहाँ पे सारी क्लासेस मेंशन होगी। All you have to do is आप क्लास पे सिलेक्ट करो, जैसे आप क्लास सिलेक्ट करोगे उस पर जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए गए हैं वो आ जाएंगे। फिर आपको जैसे पढ़ना है इंग्लिश क्लास 6 हनीकॉम्ब, आप क्लिक करोगे इसके ऊपर, जैसे ही आपने क्लिक किया आपके पास चैप्टर वाइज वीडियोस आ जाएंगे। अब आपको उसमें एक्सप्लेनेशन देखना है, समरी देखना है, क्वेश्चन आंसर्स देखनी है, MCQs देखनी है, आपको बस उस पर क्लिक करना है एंड योर वीडियो विल स्टार्ट. So that is it. Thank you so much. Do not forget to like, share and subscribe. Take care. Bye.